Dear students, we are going to start the course Tensor Analysis and its applications. So in this very first lesson, I will give you a brief introduction to tensors. Here is the layout of introduction. Firstly, we will see the origin of tensors, then why we need tensors, and after that, what tensors are actually. The origin of tensors. The word tensor has its root tenses in Latin meaning stretch और tension. ठीक है, टेंसर का वर्ड टेंसस से बना है जिसका मीनिंग है stretch और tension. J.W. Gibbs in 1884 developed the concept of dyadics, means an object with two parts or elements, and polyadics, an object comprising of different elements, which are actually tensors in modern sense but only different by names. So this can be regarded as the origin of tensors and actually gives the concept of tensors which is only different by names. After that, W. White in 1898 introduced the term tensor in his study of stress and strain of crystals. So White was the first to use the word tensor. Later on, many physicists, including Albert Einstein and Marcel Grossman in 1913, used the Ritchie's concept with the name tensors instead of systems. So, Albert Einstein and Marcel Grossman introduced the term tensors in physics and mathematics. So, this was a brief historical track of the word tensor in mathematics. Now the question comes, why we need tensors? To answer this question, just recall the concept of scalars and vectors. A scalar is a physical quantity that is represented by a number at a particular point in space. For example, mass, density, and temperature. Next, a vector is a tool to keep track of two pieces of information, typically magnitude and direction for a physical quantity. For example, पोजीशन फोर्स एंड वेलोसिटी सो स्केलर और वेक्टर के कॉन्सेप्ट से आप लोग फेमिलियर हैं और इनकी एग्जांपल से भी so what happens when we need to keep track of three pieces of information for a given physical quantity? So just imagine if we categorize the physical quantities in three categories. कुछ quantities ऐसी हैं जिनको हम just एक number से represent कर सकते हैं. That quantities are called scalar. कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर्स. ये दोनों कैटेगरीज आप इनसे फेमिलियर हैं. ठीक है. देन देयर कम्स द थर्ड कैटेगरी कि आपके पास अगर थ्री पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है और एक ही चीज़ के बारे में, एक ही फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, और उसको आपने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना, देन हाउ you do this? We say that these three pieces of information are magnitude, direction and plane. ठीक है. यहाँ अब टेंसर्स का कॉन्सेप्ट आता है. इस तरह के इंफॉर्मेशन को कंबाइन करने के लिए मैथमेटिकली जो आप यूज करते हैं टर्म, वो टेंसर है. ठीक है. टेंसर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट सच फिजिकल क्वांटिटीज. जब आपके पास pieces of information ज़्यादा हो जाते हैं, means you can say that tensors is a generalization of scalars and vectors. And here are some examples of tensors that are stress, strain and inertia. We will discuss these in later lectures. So, to discuss the concept of tensors in detail, I will explain here the stress tensor. स्ट्रेस टेंसर को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके साथ जो इंडिसेस आ रहे हैं ये बताएंगे कि ये किस डायरेक्शन में और किस प्लेन में है. ठीक है. इसके कंपोनेंट्स किस डायरेक्शन और किस प्लेन में है. यू कैन सी ओवर हियर हमारे पास ये थ्री डायमेंशनल क्यूब है. क्यूब हमने इसलिए लिया कि हमें प्लेन्स भी रिक्वायर्ड है. ठीक है. स्ट्रेस टेंसर के आपके पास 9 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 इन ईच प्लेन. ये आपके पास एक प्लेन है. ठीक है. दिस प्लेन इज पैरेलल टू वाईजी प्लेन. ये जो प्लेन है ये पैरेलल है वाईजी प्लेन के. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है. तो ये जो प्लेन है ये वाई जी प्लेन के पैरेलल है. इस प्लेन में जो स्ट्रेस टेंसर के कंपोनेंट्स हैं वो हैं सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा एक्स वाई एंड सिग्मा एक्स जी. फर्स्ट इंडेक्स इन तीनों कंपोनेंट्स में x है. दैट मीन्स कि x नॉर्मल है इस प्लेन पे. ये कंपोनेंट्स जिस प्लेन में हैं उस प्लेन पे x एक्सिस नॉर्मल है.
और जो सेकंड इंडेक्स है वो शो कर रहा है कि ये किस डायरेक्शन में है कंपोनेंट। एक्स एक्स मीन्स कि ये वाई जी प्लेन में है और एक्स डायरेक्शन में है, एक्स वाई मीन्स कि ये वाई जी प्लेन में है और वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। एंड सिमिलरली एक्स जी मीन्स कि ये वाई जी प्लेन में है और ये जी डायरेक्शन में है। इसी तरह आप इन सब सब कंपोनेंट्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। इस स्ट्रेस टेंसर को हम इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। इस सारी इंफॉर्मेशन को हम कंबाइन करके इसके कंपोनेंट्स को इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर दीज कॉलम्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस, ठीक है, कि ये कंपोनेंट्स किस डायरेक्शन में हैं, और ये जो रोज हैं ये बता रही हैं आपको कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये किस प्लेन में है, ये स्ट्रेस टेंसर के जो कंपोनेंट्स हैं ये किस प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो जो है वो वाई जी प्लेन के लिए है, और सेकेंड रो एक्स जी प्लेन के लिए है, थर्ड रो एक्स वाई प्लेन के लिए। और इन कंपोनेंट्स के अंदर जो सेकंड आपके पास इंडेक्स है वो बता रहा है कि ये कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है। फर्स्ट इंडेक्स बता रहा है आपको कि ये जिस प्लेन में है उस प्लेन पे परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है, ठीक है। So in short, a scalar is a quantity whose specification requires just one number. On the other hand, a vector is a quantity whose specification requires three numbers, namely its components with respect to some basis. And then there is a generalization of these both concepts. That is, scalars and vectors are both special cases of a more general term called a tensor. ठीक है, तो आपके पास बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज की थ्री कैटेगरीज हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को आप स्केलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ को आप वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन देर देर आर सम क्वांटिटीज विच नीड अ मोर जनरल टर्म विच इज कॉल्ड टेंसर, ठीक है। So next we will see that what is a tensor. Tensor can be regarded as a general name of multi-way array data. Okay, as you can see from this figure, a scalar can be regarded as a zero-way tensor, and a vector a one-way tensor, a matrix a two-way tensor. और जैसे जैसे आपके पास डाटा इंक्रीज होता जाएगा, आपके पास एरेज इंक्रीज होते जाएंगे, तो टेंसर का रैंक भी इंक्रीज होता जाएगा। दिस क्यूब कैन बी रिगार्डेड एज अ थ्री वे टेंसर, और जब इस क्यूब के साथ एक और क्यूब आप मिलाएंगे तो वो फोर वे टेंसर है। सिमिलरली जैसे जैसे आपके पास पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ते जाएंगे, टेंसर का रैंक भी बढ़ता जाएगा। This concept of tensor and this definition of tensor is used in the field other than mathematics, ठीक है। In mathematics we say that in an m-dimensional space a tensor of rank n is a mathematical object that has n indices, ठीक है। m dimensional space में a tensor of rank n क्या होता है, जिसके n indices होते हैं, m raised to power n components and it obey certain transformation rule, ठीक है। तो ये आपके पास टेंसर की मेन डेफिनेशन है। तो इसमें जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, एम डायमेंशनल स्पेस का, रैंक का, इंडिसेस का और ट्रांसफॉर्मेशंस का, ये हम लेटर ऑन लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। Rank of a tensor क्या होता है? The rank of a tensor, also known as the order or degree of a tensor, is the total number of free indices in a tensor. Free indices क्या होते हैं ये भी नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। यहाँ जस्ट आप ये देख लें कि अगर टेंसर, जैसे यहाँ पर एक नंबर है, इसके साथ कोई इंडेक्स नहीं है, सो दिस इज अ टेंसर ऑफ रैंक जीरो। वी अल्फा, इसके साथ एक इंडेक्स आ रहा है, दिस इज अ टेंसर ऑफ रैंक वन, दिस इज ऑल्सो अ टेंसर ऑफ रैंक वन एंड दिस इज अ टेंसर ऑफ रैंक टू, ठीक है। तो जब आप फ्री इंडेक्स का पढ़ेंगे तो वहाँ आप देख लेंगे कि आपके पास फ्री इंडेक्स क्या होता है। तो अगर टेंसर में जितने फ्री इंडेक्सेस होंगे वो उस टेंसर का रैंक होगा।